अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा होपफुली आपने कल का जो लेक्चर है उसको देखा होगा एंड यू मस्ट हैव रेड द आर्टिकल विच आई गेव यू एज एन असाइनमेंट. The article was with the topic the anthropological view of religion. Okay, can somebody unmute yourself and can tell me what is in this article? What is being said? What is the main idea? Have you gone through it? Yes, I'm waiting. Students, beta, can somebody tell me? I told you yesterday to read this article, give it a reading, and you have to read it with the, and you have to find out the points which we discussed in yesterday's lecture. Those points where you have to find out the thesis statement, and you have to see where the introduction begins, what is the main body of the paper, and what is the conclusion. Have you read this article? Nobody. It seems that none of you have bothered to read it. Okay, I'm giving you today again. मैं आज आपको फिर टाइम दे रही हूँ इस आर्टिकल को जो इसमें दिया गया है, आपने इस पेपर को पढ़ना है और इसके नीचे जो क्वेश्चंस हैं उनको आपने डिटेल में इनकी आंसर्स देखने हैं, ठीक है। उन क्वेश्चंस में जिस तरह से पूछा गया है, रेफरेंसेस के बारे में पूछा गया, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, जिस तरह से अभी डिस्कस्ड इन यस्टरडेज लेक्चर, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इस आर्टिकल को पढ़ना है. इन द नेक्स्ट लेक्चर यू आर गोइंग टू tell me what you understood from this particular article. Okay, our today's topic is preliminary reading strategies. Preliminary reading strategies are those strategies which are important or which must be done before reading something. कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले जो आप कुछ strategies होती हैं जो आप adopt करते हैं, reading strategies, so that you can understand something or some a piece of text in a better way. Fine. So some for initial reading, some strategies which are being used are: number one is SQ3R. This would be on your page number 15. SQ3R. SQ3R is well-known strategy for reading. SQ3R is applied for the range of purposes. That is, it is flexible and takes into account the need to change reading speeds. Basically, it is an acronym and it stands for S means survey, Q means question, 3R means read, recall, and review. Survey is the first initial stage. In this stage, the readers attempt to gain the general gist of the material in question by speed reading, scanning, and skimming the text. It means whenever you are given some piece of a text, survey is the first stage. Survey means you just go through the text quickly so that you can get what is the main idea of that particular piece of text. ठीक है, कि सर्वे क्या है कि आप उसको जल्दी से एक क्विक रीडिंग एक बार देखते हैं, स्किमिंग, स्कैनिंग जो रीडिंग स्ट्रेटजीज हैं उसके थ्रू, और आप देखते हैं कि मेन आइडिया क्या हो रहा है उस टेक्स्ट में, मेन बात क्या हो रही है. देन इज क्वेश्चन. क्वेश्चन होता है कि यू मस्ट हैव सर्टेन क्वेश्चन इन योर माइंड व्हेन यू आर रीडिंग समथिंग. मीन्स यू मस्ट नो व्हाई आर यू रीडिंग दिस टेक्स्ट, what do you want to learn from this text, what information you require from this text. Like some examples are what I already know, what you already know about that subject which you are reading, and which chapter you can relate to the assignment question, the particular chapter which you need to read. And then is how you can read it to your own experience. Means how does
your experience relate to that particular reading of the text. This is question, means you have to have some questions in your mind before reading that text, that what is the purpose, why are you reading this text, what would be the outcome of the reading. Fine. Third step is you read. Now you are going to be ready for the main activity, which is reading, for which you are there, and this involves a careful consideration of the meaning of what the author is trying to convey, and revolves around being critical as well as active. Means you have to be critical and active while reading some text, because now you have to analyze the idea of what the author is trying to convey in that text. ठीक है, आपने क्या होता है कि आप रीड कर रहे होते हैं, मतलब सर्वे का स्टेप आपने फुलफिल किया, यू हैव गॉन थ्रू इट, आपने बर्ड आई व्यू रीडिंग टाइप उसको दे दी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि क्वेश्चन आपने जो है उसको आपने आपको पता होना चाहिए कि आप क्यों पढ़ रहे हैं ये टेक्स्ट, इसका पढ़ने का क्या मकसद है, एंड देन इज रीडिंग, थर्ड स्टेप कि अब आप उसको रीड करेंगे, तो अब आप उसको केयरफुली रीड करेंगे, एंड यू मस्ट नो अथॉरियर इंटेंशन, कि ऑथर जो है बेसिकली क्या आइडिया कन्वे करने की कोशिश कर रहा है उस पीस ऑफ टेक्स्ट में। Third step is fourth step, recall. Regardless of how interesting the article or paper is or chapter is, you must make an effort to recall when you are reading. Means आपने याद करना होता है टाइम के साथ साथ पढ़ते हुए, means कि आपको you must remember the main points which you have read previously. आप साथ साथ आपको रिकॉल करते हैं कि आप पीछे क्या पढ़ते आ रहे हैं और आगे क्या पढ़ रहे हैं, इससे आपकी कंसंट्रेशन जो है वो improve होती है। Recalling gives you chance to think about and assimilate what you have just read, keeping you active. A significant element in being active is to write down in your own words the key points. साथ साथ क्या होता है कि रिकॉलिंग किस तरह से भी की जा सकती है कि आप की पॉइंट्स जो हैं अपने ओन वर्ड्स में साथ साथ लिखते जाएं, पिछली चीज़ों को रिकॉल करते जाएं, याद रखते जाएं, व्हाट इज ऑथर ट्राइंग टू से, फाइन, एंड देन यू आर गोइंग टू राइट डाउन द की पॉइंट्स so that you can use them afterwards. Then final step is review. Third R, which is, it means review. It means you have to review the material that you have recalled in your notes. Did you understand the main principles of the arguments? Did you identify the main topics? Are there any gaps? Okay, do not take for granted that what you have recalled everything you need correctly. Review the text again to make sure and clarify. Means you have to review that have you understood everything. अपने जो आपने नोट्स बनाए हैं उनके थ्रू रिकॉल करें कि आपने क्या पढ़ा है उसमें, क्या आपको सारे पॉइंट समझ आ गए हैं, कहीं कोई गैप्स तो नहीं है, अगर हैं तो आप उसको फुलफिल करेंगे और दोबारा से टेक्स्ट को रिव्यू कर लेंगे अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या कहीं से समझ नहीं आ रहा। दीज आर द SQR इज़ द फर्स्ट वे। अब SQ3R जो है, जब आप स्टार्ट करते हैं रीडिंग में, असाइनमेंट में कोई चीज़ पढ़ने में, तो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। SQR में ये 5 स्टेप्स हैं, S सर्वे, Q क्वेश्चन, 3 R's are रीड, रिकॉल एंड रिव्यू, ठीक है। Okay, then is a basic reading strategies. Next step is, what are the basic reading strategies which you must follow while reading. Number one is skimming. Skimming is while you look at the text in order to do one or more of the following. What do you want to do while skimming? First, you identify what the text is about. You identify the main idea of the text. You decide how useful the text is for your purposes. You decide how you make use of the text. Skimming might involve certain things which you are looking in the text. First is title, section heading, abstract or summary, first and last paragraphs, first and last sentences of intervening paragraphs, topic sentences in each paragraph. बेटा स्किमिंग जो होती है इसमें आप डिटेल रीडिंग नहीं करते हैं टेक्स्ट की, ठीक है, आप बस क्विकली उसको देखते हैं और आप आइडेंटिफाई करते हैं कि टेक्स्ट का किस बारे में बात हो रही है, मेन आइडिया क्या है, what is the main purpose of the text।
फिर आप सारे पैराग्राफ्स नहीं पढ़ते हैं इन डिटेल, आप शुरू का या लास्ट का पैराग्राफ यूजुअली पढ़ लेते हैं, मेन हेडिंग्स पढ़ लेते हैं, टाइटल देख लेते हैं उस टेक्स्ट के अंदर जो बात हो रही है, ठीक है। समरी अगर एब्स्ट्रैक्ट दिया गया है या समरी दी गई, आप वो पढ़ लेते हैं, तो उससे आपको आइडिया हो जाता है कि इस टेक्स्ट के अंदर क्या बात हो रही है, ठीक है। Another form of skimming is when you are previewing a book in order to decide how useful it is for your purposes. In this situation, you might also look at one of the following: information about the author and a publication detail, content pages, forward or an introduction, and index. Means अगर आप किसी बुक की स्किमिंग करते हैं तो व्हाट डू यू डू इज़ कि आप उस बुक के ऑथर के बारे में देखते हैं, उसकी पब्लिकेशन डिटेल्स देखते हैं, ठीक है, उसके पेजेस ऑफ कंटेंट पेजेस जिसमें दिया गया है, कंटेंट्स दिए गए हैं इस बुक में क्या है, उसका फॉरवर्ड अगर ऑथर ने कुछ लिखा हुआ है, इंट्रोडक्शन है तो वो देखेंगे, और इंडेक्स देखते हैं। इससे आपको पता चल जाता है बगैर बुक पढ़े कि बुक में क्या बात हो रही है, किस टॉपिक पे ये बुक है। दिस इज कॉल्ड स्किमिंग। देन इज प्रिडिक्टिंग। प्रिडिक्टिंग इज फ्रॉम प्रिडिक्ट, मतलब कुछ प्रिडिक्ट करना, कुछ सोचना कि इसमें क्या हो रहा होगा, इसमें क्या हो सकता है इसके अंदर, ठीक है। यू ऑलवेज लर्न फ्रॉम द टॉपिक ऑफ द टेक्स्ट। टेक्स्ट से आप जब टॉपिक का जो मिलेगा आपको, टाइटल मिलेगा टेक्स्ट का, उससे आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इसमें क्या है। एंड वट यू हैव लर्न फ्रॉम योर प्रिव्यूइंग इन ऑर्डर टू गेस वट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन द टेक्स्ट विल कंटेन एंड हाउ यूजफुल इट विल बी। ब्रेनस्टॉर्मिंग योर प्रायर नॉलेज विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द टेक्स्ट। आप प्रेडिक्ट करते हैं, आप पहले से ही एक अंदाज़ा लगाते हैं कि व्हाट इज़ इन द टेक्स्ट, ठीक है। तो आप उसकी टाइटल से, उसकी हेडिंग से कर लेते हैं। यू जस्ट ब्रेनस्टॉर्म योर इन्फॉर्मेशन, अपना नॉलेज को ब्रेनस्टॉर्म करते हैं, और आप उसके टाइटल से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इस टेक्स्ट के अंदर क्या बात हो रही है। देन नेक्स्ट स्टेप इज स्कैनिंग। Scanning involves finding words or other symbols such as figures which have particular importance for you. When you are scanning, you already know the form of the words or symbols you are looking for. When you scan, you normally focus on small parts of the text only. अब आता है स्कैनिंग। स्कैनिंग में क्या है कि आप इंपॉर्टेंट वर्ड्स या सिंबल्स उस टेक्स्ट में ढूंढते हैं, और उसके थ्रू आप अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हाट इज़ being discussed in this text, ठीक है। इट यूजुअली फोकस, ये कुछ स्मॉल पार्ट्स पे फोकस करता है टेक्स्ट के, इंपॉर्टेंट पार्ट्स पे। आप उसको स्कैनिंग मीन स्कैन से है ये कि उसको स्कैन करना, उसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं कि इस टेक्स्ट में क्या बात की जा रही है, ठीक है। Next step is search reading. Search reading means quickly finding the ideas which are particularly important for you. सर्च करना, रीडिंग में सर्च करते हैं आप आइडियाज़ को, उन आइडियाज़ को जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। दिस इज़ डिफरेंट फ्रॉम स्कैनिंग। इसमें क्या होता है कि स्कैनिंग में आप इम्पॉर्टेंट वर्ड्स को स्कैन करते हैं जिनके थ्रू आप अंडरस्टैंड कर सकें टेक्स्ट को। इसमें आप आइडियाज़ को स्कैन करते हैं, या इट इज़ एन एडवांस्ड अप्रोच। ये थोड़ा स्कैनिंग से डिफरेंट है, और ये आपको मेन आइडिया जो है, ये प्रॉपर एक सीक्वेंस में जो आइडियाज़ दिए गए होते हैं उसमें हेल्प करती है अंडरस्टैंड करने में, ठीक है। Then is identifying the main ideas. After searching for ideas, आप identify करते हैं main ideas. You understand the writer's main points. कि what is writer trying to say? जो main idea है writer का, you just find out that idea, and you have to. It is possible for you to quickly आफ्टर स्किमिंग के बाद जो आप यूजुअली मेन आइडिया को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। लेकिन मुश्किल जो टेक्स्ट होंगे, जो डिफ़िकल्ट होते हैं, उसमें ज़रा यू हैव टू गिव डिटेल रीडिंग, ज़रा डिटेल रीडिंग होगी, ओनली देन यू कैन अंडरस्टैंड द मेन आइडियाज़। नेक्स्ट पॉइंट इज़ केयरफुल रीडिंग. Now this is a very important thing. You have to read very slowly and carefully so you can understand each and every word of the text. And especially you will read carefully that part of the text in which you are interested. You might do this in order to understand the details of the text and also to infer the meanings. इससे क्या है, आप carefully बहुत reading करेंगे, बहुत slowly reading करेंगे, ताकि each word जो है, हर word आपकी समझ में आए, उसमें आप हर डिटेल जो है आपको अंडरस्टैंडिंग मिल जाए आपकी कि उसके टेक्स्ट में क्या बात हो रही है, और डायरेक्टली अगर कोई बात की जा रही है वो भी आपको समझ आ जाए, और इनडायरेक्टली अगर ऑथर कुछ कन्वे कर रहा है, यू हैव टू इन्फर दोज मीनिंग्स, तो आपको वो भी समझ आ जाए। नेक्स्ट स्टेप इज इन्फरिंग. इन्फरिंग मीन्स टू इन्फर.
to obtain the meaning from the text the writer not explicitly stated। मीन्स कि कोई ऐसी बात, कोई ऐसा आइडिया जो राइटर ने डायरेक्टली नहीं उसमें कन्वे किया है इन द टेक्स्ट, इनडायरेक्टली मतलब कोई आइडिया कन्वे हो रहा है, तो आपने वो इन्फर करना है, वो आपने ढूंढना है, उसका आपने देखना है कि व्हाट इज राइटर ट्राइंग टू से। समटाइम द राइटर एक्सपेक्ट्स यू टू फिल द गैप्स इन द टेक्स्ट इन ऑर्डर टू मेक इट मोर सेंस। क्या होता है कि ऑथर जो है समटाइम्स कुछ आइडिया स्किप कर देता है, सिर्फ इंटेंशनली स्किप करता है ताकि आप खुद उन आइडियाज़ को सॉर्ट आउट करें, उनको ढूंढें, इन्फर करके आप उनको देख सकते हैं। समटाइम्स यू मे विश टू इन्फर व्हाई द ऑथर रोट द टेक्स्ट, द राइटर्स पर्पस, दैट इज द राइटर्स पर्पस एंड ऑल्सो द राइटर्स एटीट्यूड टू व्हाट ही और शी इज़ राइटिंग अबाउट। जब सम आपने कुछ होता है कि कुछ बार आपको इस तरह से होता है कि आपने इन्फर करना होता है कि ऑथर ने ये टेक्स्ट क्यों लिखा है, उसका पर्पस क्या था, ठीक है, या आप खुद से आइडिया लगाते हैं। तो दिस इज कॉल्ड इन्फरिंग एंड इट कम्स आफ्टर द केयरफुल रीडिंग। Then is dealing with unfamiliar words। अब होता क्या है, whenever you are given some piece of text, then you find some words which you don't understand, ठीक है। उसमें होता ये है कि आपको कुछ नेसेसरी ज़रूरी नहीं है कि आपको हर बात जो है उसको समझ आ जाए, कुछ वर्ड्स डिफ़िकल्ट होते हैं। फर्स्ट यू नीड टू डिसाइड इज़ वेदर इट इज़ रियली नेसेसरी टू अंडरस्टैंड दैट वर्ड। पहले आपने देखना है कि वाकई ज़रूरी है कि आपको उस वर्ड को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, इतना इंपॉर्टेंट वो वर्ड है कि उसको समझने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। जब आप ये डिसाइड कर लें कि हाँ वर्ड इंपॉर्टेंट है तो ठीक है, अदरवाइज यू कैन इग्नोर इट। अगर आपको नहीं समझ आ रहा उस टेक्स्ट में तो उस वर्ड को इग्नोर कर दें और आगे चलें आप, ठीक है। फिर आपने उस कॉन्टेक्स्ट में, किस कॉन्टेक्स्ट में वो वर्ड यूज़ किया गया है, यानी कि उससे पहले क्या बात हो रही थी, उसके बाद क्या बात हो रही है, वो तो आप उसको जब देखते हैं आप लोकेट कर सकते हैं कि इस वर्ड का मीनिंग क्या होगा। आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो है इसमें मीनिंग क्या होगा। अगर तब भी आपको समझ नहीं आता तो आप डिक्शनरी का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। An approach to dealing with new vocabulary is to decide whether you, सबसे पहले क्या आपने डिसाइड करना है कि whether you need to know the word to help you understand the text and use it later in different circumstances। In this way you will need some way of recording the word। vocabulary notebook, अगर आपको लगता है कि वर्ड इंपॉर्टेंट है और आपको उसको जानने की ज़रूरत है तो आपने उसको क्या करना है कि उसको बाद में आप उसको यूज़ भी कर सकते हैं, तो उसको आप रिकॉर्ड कर लेंगे अपनी vocabulary नोटबुक में, कोई नोटबुक जिसमें vocabulary आप अपनी लिखते हो, वर्ड्स की मीनिंग्स लिखते हो, ठीक है। फिर आपको ये जानने की ज़रूरत है, यू ओनली नीड टू नो द वर्ड नाउ टू हेल्प यू अंडरस्टैंड द टेक्स्ट। कहते हैं समटाइम्स दे आर वर्ड्स जो कि टेक्निकल से होते हैं, लो फ्रिक्वेंसी वर्ड्स होते हैं और अक्सर उसमें इंग्लिश में यूज़ नहीं होते, नेटिव लैंग्वेज में यूज़ नहीं होते। तो इस तरह का जो है आप वर्ड क्या है, आपको vocabulary को एज सच आपको यूज़ नहीं किया जाता यूजुअल vocabulary में। तो इसमें आप क्या करेंगे, तो इस वर्ड को आप जो है अंडरस्टैंड करते हैं टेक्स्ट को समझने के लिए, ठीक है। इफ़ यू आर रीडिंग दैट टेक्स्ट इन योर एकेडमिक एरिया यू विल नीड टू नो सर्टन स्पेशलिस्ट vocabulary। अगर कोई पर्टिकुलर एक एकेडमिक एरिया, जिस तरह साइंटिफिक एक आप लेक्चर कोई टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उसमें कुछ साइंटिफिक वर्ड्स होते हैं यूजुअली, वो आपको जानने की ज़रूरत होती है, वो वाले साइंटिफिक वर्ड्स, तो वो आपको जो है उनका पता होना चाहिए ताकि आपको जो है वो आर्टिकल जो है समझ आ सके, ठीक है। यू डू नॉट नीड टू नो द वर्ड आइदर नाउ और इन द फ्यूचर। कभी बार ऐसा होता है कि ऐसा वर्ड आ जाता है जिसकी आपको ज़रूरत नहीं होती ना उसकी अभी ज़रूरत है आपको, ना ही नेक्स्ट फ्यूचर में ज़रूरत होती है। तो ऐसे वर्ड का क्या किया जाए। इफ दिस वर्ड डू नॉट प्रिवेंट यू from understanding the rest of the text, you probably do not need to worry about it. If the word occurs several times, however, you may feel it necessary to work out its meaning or look it up and record it, ठीक है। कि अगर वो वर्ड जो है आपको आगे यूज़ नहीं करना, आपने अपने फ्यूचर में अपने मतलब वोकेबलरी में दोबारा यूज़ नहीं करना, तो आपको उसका मीनिंग जानने की इतनी कोई ज़रूरत नहीं है। बस ठीक है, अगर वो बार बार रिपीट हो रहा है टेक्स्ट में तो उसका मीनिंग एक बार देख लें, एक नज़र डालें उस पर, और उसको बस पता हो आपको कि हाँ ये इस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर यूज किया जा रहा है। आगे जो है एज सच यू डोंट नीड दैट वर्ड, तो इतनी ज़्यादा उस पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। ओके, दीज वर द प्रिलिमिनरी रीडिंग स्ट्रेटजीज, ठीक है, जो हमने इसमें आज देखी हैं। दीज आर प्रिलिमिनरी रीडिंग स्ट्रेटजीज which involved SQ3R,
और उसके डिफरेंट स्टेप्स हमने देखे। फिर बेसिक रीडिंग स्ट्रेटजीज़ में हमने देखा कि स्किमिंग क्या है, व्हाट इज़ स्कैनिंग है, प्रिडिक्टिंग क्या है, आइडेंटिफाइंग मेन आइडियाज़, केयरफुल रीडिंग, इन्फरिंग, and in the last we read about dealing with unfamiliar words. ठीक है बेटा, I have given you the handouts. You are going to go through these handouts today. इसमें से आपने पढ़ना है, और उसके अलावा जो आर्टिकल है एंथ्रोपोलॉजिकल व्यू ऑफ रिलीजन, उसको देखना है। उसके नीचे जो क्वेश्चंस हैं आपने उनके अकॉर्डिंगली उस आर्टिकल को देखना है। ठीक है, टुमारो नेक्स्ट इन द आई मीन इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दीज थीसिस स्टेटमेंट आपने ढूंढी उस आर्टिकल में, आपने उसमें उसका मेन आइडिया बॉडी का पता चला है, कंक्लूजन कहाँ हो रहा है, ताकि आपको आइडिया हो कि रीडिंग को किस तरह से आप अपने स्किल्स को एनहांस कर सकते हैं। ठीक है, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी, or you can ask me beta you can ask me in the WhatsApp group as well, because ये जो रिकॉर्डिंग है ये एक्सीड कर रही है टाइम लिमिट से। ठीक है, you can ask me in the WhatsApp group, there I can answer your questions. See you next week then. If you find anything difficult you can ask me anytime. Okay then, Allah Hafiz.